बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students. How are you all students? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. The second chapter, month of August, is a measurement. Chapter number 9, page number 88. This is your science book. Description of chapter. Number 1, question answer. Number 2, true and false. Number 3, fill in the blanks. Number 4, draw diagram. Diagram में है rain gauge and clinical thermometer. Chapter number 9, measurement, page number 88. Measurement is an important and essential part of our daily life. We need to measure time, length and volume, and we use different unit of measure time. मेजरमेंट जो है हमारी डेली रूटीन में बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हमें हर काम के लिए मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लाइक टाइम में, लेंथ में एंड वॉल्यूम में. तो मेजरमेंट जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है. This is analog clock. There are two type of clock. Number 1, analog clock, and number 2, digital clock. This is analog clock. Analog clock is used to measure time, and analog clock show time by the position of arm. The longer hand of the analog clock show minutes, and smaller hand of the clock show hours, and the thin hand show second. एनालॉग क्लॉक जो है वो हम डेली रूटीन में नॉर्मल तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं. इसमें जो लॉन्गर हैंड होता है वो मिनट्स को शो कर रहा होता है, और स्मॉलर हैंड जो होता है वो आवर्स को शो करता है. इसके अलावा इसमें एक थिन हैंड भी होता है जो कि सेकंड को शो कर रहा होता है. नंबर 2, डिजिटल क्लॉक. Digital clock is used to measure time. Digital clock show time in numbers. Digital time जो है वो जो टाइम है वो नंबर्स में शो करते हैं, और इसकी ये जो डिजिटल क्लॉक है ये क्लॉक की एक और फॉर्म है जिसको हम अब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल थर्मामीटर. The doctor used a clinical thermometer to measure his body temperature. We measure temperature in Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. Okay students, usually a clinical thermometer is used to measure the body temperature. A clinical thermometer read the temperature from 35 Celsius to 40 Celsius or 95 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. The body temperature of a normal person is 37 Celsius, which is equivalent to 98.6 Fahrenheit. ये जो आप नॉर्मली आप देखते हैं आपके घरों में भी होता है थर्मामीटर, इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और जो कि बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है. और एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इस बात को शो करता है कि पर्सन को फीवर है. लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is called length. We need standard unit for measuring length. The standard unit of length is meter. Short length are measured in unit like centimeter, millimeter and inches. Longer length are measured in meter and kilometer. Okay students, ruler, meter rods and measuring tapes are commonly used for measuring length. We normally use a ruler to measure length in centimeter, millimeters और inches. ये हमारे सामने एक स्केल है जो कि लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और लेंथ मालूम करने के लिए
जो हम शॉर्टर लेंथ मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और इंचेस होते हैं, और लॉन्गर लेंथ मालूम करने के लिए जो हम रूलर इस्तेमाल करते हैं उसमें मीटर एंड किलोमीटर इस्तेमाल होता है। रेन गेज, रेन गेज रेन वाटर फॉर अ सर्टेन पीरियड of time is collect in a jar which is keep out in the open. This jar measure the amount of rainfall and is called a rain gauge. क्या होता है कि जो रेन का जो मालूम करने, इसको रेन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको रेन गेज कहते हैं, और इसमें जो होता है कि रेन वाटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कलेक्ट इन अ जार, और इसको रखते हैं विच इज कीप आउट इन द ओपन। ओके, और इसको इसमें रेन की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और इसको कहा जाता है रेन गेज। Question number 1. Define volume and write its unit of measurement. आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है और इसकी आपको यूनिट्स बतानी है, ठीक है। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द शेप ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। लीटर एंड मिलीलीटर आर द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है कि वॉल्यूम इज अ डेफिनेट एज द स्पेस ऑक्युपाइड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो लीटर एंड मिलीलीटर कहलाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताना है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure body temperature. It reads the temperature from 35 Celsius to 45 Celsius और 95 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि ये जो नॉर्मली हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं ये हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है, और इससे हमें पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और इसको मालूम करने में आसानी होती है इस क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन लेंथ एंड राइट इट्स डिफरेंट यूनिट। आपको लेंथ को डिफाइन करना है और बताना है कि इसकी यूनिट कौन सी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अदर यूनिट आर मिलीलीटर, सेंटीमीटर, इंचेस एंड किलोमीटर्स। किसी भी 2 पॉइंट्स को के दरमियान जो फासला होता है उसको जो मालूम करते हैं वो लेंथ कहलाता है, और इसको मालूम करने के लिए जो इसके यूनिट इस्तेमाल होते हैं उसको इसमें मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह शामिल हैं। अब आपके पास एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज में आपको ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो नंबर 1, एनालॉग क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है डिजिटल क्लॉक के मुकाबले में। एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि जो सही आपको टाइम बताए, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो दैट इज फॉल। नंबर 2, वी यूज़ आ रूलर टू मेजर लेंथ इन मीटर। ठीक है, हम एक रूलर को इस्तेमाल करते हैं कि उसकी लेंथ मालूम करने के लिए मीटर में, दैट इज फॉल। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 सेल्सियस, राइट। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है। नंबर 4, 1 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यस। एंड नंबर 5, meter and centimeter are the unit that we use to measure long length. False. आपके ट्रू एंड फॉल्स में ये 5 आपको मैंने करवाए। नंबर 1 में फॉल, नंबर 2 में we use a ruler to measure length in meter, हम मालूम करते हैं मीटर को, तो ये है आपका फॉल। नंबर 3 में ट्रू, नंबर 4 में ट्रू एंड नंबर 5 में फॉल्स। Fill in the blanks.
नंबर 1, ये आपको 8 गिवन है स्टूडेंट्स, आपको इसमें 5 करने हैं। नंबर 1, लीटर एंड डैश आर द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मिलीलीटर। नंबर 1 में है मिलीलीटर। नंबर 2, पेट्रोल इज मेजर इन डैश, लीटर। Number 3, the smaller hand of the clock show the time is in dash hour. Number 4, the longer hand of the clock show the time is minute. यानी जो आपका है जो स्मॉलर हैंड है वो आवर्स को यानी घंटे को शो करता है और लॉन्गर हैंड जो है वो मिनट्स को शो करता है। नंबर 5, अ रूलर यूजुअली मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, मिलीलीटर और इंचेस। ठीक है, तो ये आपके 5 इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 में मिलीलीटर, नंबर 2 में लीटर, नंबर 3 में आवर्स, नंबर 4 में मिनट्स एंड नंबर 5 में रूलर्स। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए हैं। इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए हैं। ठीक है, और आपको अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है मैच द कॉलम। ठीक है, मैच the material with the measuring unit, follow the given example। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको देखिए जो मटेरियल आपको दिया गया है उसमें गोल्ड रिंग है, शुगर है, ऑन विटामिन टैबलेट है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड है, 4 सैक ऑफ व्हीट है एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन है। ठीक है, और जो इसकी मेजरिंग यूनिट है वो है किलोग्राम एंड ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, ग्राम एंड मिलीग्राम एंड ग्राम। ठीक है, तो इसको हम मैच करेंगे। सबसे पहले गोल्ड रिंग को ग्राम से मैच किया गया है। इसके अलावा शुगर को किलोग्राम एंड ग्राम से, और विटामिन टैबलेट्स को मिलीग्राम से, और मस्टर्ड सीड को ग्राम एंड मिलीग्राम से। इसके अलावा व्हीट को किलोग्राम से एंड बॉडी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से आपको इसको मैच किया गया है। तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है, जो मेजरमेंट का चैप्टर है, इसमें मैंने आपको जो चीज़ें आपको बताई हैं और जो डायग्राम बनाने के लिए बताया, एक तो आप रेन गेज डायग्राम उसकी बनाएंगे आप, और क्लिनिकल थर्मामीटर की आप डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बेटा आप इंटरलीफ पेज पे बनाइएगा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, कलरफुल होनी चाहिए और इसको लेबल कीजिएगा। लेबल का मतलब ये है कि आप जब क्लिनिकल थर्मामीटर ड्रॉ करेंगे तो इसके नीचे लिखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, और जब रेन गेज को ड्रॉ करेंगे तो इसके नीचे लिखिएगा रेन गेज। ठीक है, तो आज हम अब एंड में आपको मैं एक थोड़ा सा रिव्यू बता देती हूँ मेजरमेंट का कि हमने क्या किया था। हमने आपको 2 टाइप ऑफ आपको क्लॉक बताया था, एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। इसके बारे में बताया था कि वो कैसे होते हैं। फिर मैंने आपको वॉल्यूम्स बताई थी कि वॉल्यूम्स जो होते हैं उसको किस तरह मेजर किया जाता है, और मेजरमेंट जो है वो हमारी डेली जो लाइफ है, रूटीन में बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर बताया था। द डॉक्टर यूज्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिर मैंने आपको लेंथ बताई थी कि लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ, और लेंथ जो है वो जो शॉर्टर लेंथ है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड इंचेस, और जो लॉन्गर लेंथ होते हैं वो होते हैं मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझना है और याद करना है। इसके अलावा मैंने आपको रेन गेज के बारे में बताया था कि किस तरीके से रेन का जो वाटर होता है वो उसको कलेक्ट करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट में, और फिर उसको मेजर करते हैं, तो जिसको उसको कहते हैं रेन गेज। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स करवाए, फिल इन द ब्लैंक्स करवाई, क्वेश्चन आंसर करवाए। ये सारा काम स्टूडेंट्स आप नीट एंड क्लीन कीजिएगा, और अगर ब्लैक पॉइंटर यूज़ करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए कीजिएगा, और पेंसिल से आप सारी वर्किंग कीजिएगा। और ट्रू एंड फॉल्स को अगर आपको हाईलाइट्स करनी है तो वो आप ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स को। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स हैं उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंटर से या फिर ब्लू पेंसिल कलर से। ठीक है, ब्लू पेंसिल कलर से इस्तेमाल कीजिएगा।
और पिक्चर आपको मैंने बता दी है कि इंटर लीफ पेज पे बनाइएगा बेटा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बार बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि पिक्चर कहाँ बनानी है, और मैं उनको यही बताती हूँ कि इंटर लीफ पेज पे बनानी है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिए, और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेंगे, और आपको ये जो चैप्टर्स है इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी, और आप जो परेशान होते हैं वो भी आप परेशान नहीं होंगे, और इजीली आप अपना ये जो चैप्टर है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मंथ ऑफ अगस्त के आपको 2 चैप्टर थे, आपको दोनों चैप्टर मैंने करवा दिए, और ये मंथ ऑफ अगस्त का दूसरा चैप्टर था मेजरमेंट, ये एंड हो गया है। और इसको याद कीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से इसका काम कीजिएगा, और काम हमेशा बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और पढ़िएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।